وہ رات جو ہے جب ایک 59 منٹس کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. بالکل آپ نے دیکھیں وہاں رافیل ڈاگ فائٹ بھارت ہوئی کے ہے. 80 جہاز ہاں فضا میں، ہمارے 40 آڈز ہی آپ دیکھیں کیسے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے ایئر فورس کو سلام ہے جیسے انہوں نے ان کے طیارے گرائے ہیں، نو پریشر پریسیجن کے ساتھ ماشاءاللہ. اور دنیا جو ہے، اچھا ویڈیو گیمز اور باتیں فلمیں الگ ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ایسی ڈاگ فائٹ دنیا نے نہیں دیکھی، اور سب جو ہے فینز ہو گئے پاکستان. بالکل. اور ڈاگ فائٹ ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے بھارت یو ایس کے پاس گیا اور بھارت نے کہا کہ اب یہ جنگ رکوا دیں آپ، کیونکہ انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی. ان ادر ورڈز جس کے بعد انہوں نے نیریٹو تو اپنا بنانا تھا، لیکن ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ بری طرح بدترین ان کو یہ شکست ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کر کے سیز فائر کرایا. تو ہم وہ یادیں بھی تازہ کریں گے کچھ اپنی، اور آپ ابھی جو ریسنٹ جو تنازعہ چل رہا ہے اس سے متعلق بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ہمیں جوائن کیا اس وقت ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. خالد صاحب گڈ مارننگ کرتے ہیں شو پر، آپ کو کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، گڈ مارننگ، السلام علیکم جی. آپ کو بھی نیابی سے جی آج تو بہت مبارکباد پاکستان ملٹری، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی کی جیت. سر ایک سال پہلے کا تھوڑا سا واک ڈاؤن دا میموری لین ذرا کرتے ہیں آپ ذرا. بالکل اب ہمارے شوز پہ ہم آپ سے بات بھی کرتے تھے، ہم تو بہت جذبات سبھی بڑے جذباتی تھے. ذرا وہ لمحات ایک سال پہلے ریوائنڈ کر کے ذرا وہ تازہ کیجیے. جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ہے. یہ وہ تقریباً آج سے پورے 365 دن پہلے جی رات کو جو اس واقعے کے وقت ہو رہا تھا، الحمدللہ پاک فضائیہ ریڈی تھی. میں ان کے بہاف پہ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تھوڑا ان ٹچ تھا. اور وہاں سے جب تقریباً 1:30 بجے کے قریب میں اپنے آپ کو واقعی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خبر دی گئی تھی کہ یہ ہم نے یہ کیا ہے. پاک فضائی کی لیڈرشپ سے جب پتہ لگا مجھے تو انبلیویبل اس لیے تھا. سر پتہ کیا چلا آپ کو ایگزیکٹلی وہ بتائیں، وہ نیوز ہسٹوریکل نیوز؟ وہ ہسٹوریکل نیوز اس طرح پتہ لگی جی کہ مجھے کہا گیا کہ الحمدللہ پہلے کہا گیا کہ ہم نے 6 جہاز ہندوستان کے تباہ کیے. تو میں بہت خوش ہوا، اس میں تو بہت بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. لیکن ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس بہت رسکی یہ پروفیشن ہے. تو میرا پہلا سوال سپونٹینیس یہی تھا. میں نے کہا اپنے جہازوں کا بتائیں، کیونکہ بہت رسکی ہوتا ہے کہ اپنا بھی خدا نخواستہ نقصان نہ ہو گیا ہو. تو مجھے بہت آج بھی میرے کانوں میں وہ لفظ گونج رہے ہیں جب یہ کہا گیا کہ سر الحمدللہ آل لینڈڈ بیک اینڈ کاؤنٹڈ. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. میری بات ویسے صحیح ہے کہ جہاں اگر 6 جہاز گرائے ہیں تو اپنا تو نقصان ون ایکسپیکٹس کہ بھئی کوئی کچھ کامبیٹ میں یہ وہ اپنا نقصان تو ہوا ہوگا. ماشاءاللہ مطلب یہ اسی لیے دس از این انبلیویبل وکٹری 6-0. الحمدللہ. تو وہ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. اور ایک اور جو دلچسپ بات آپ ویورز کو بتاتا چلوں، میں نے اتفاق سے آج ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنی ڈاکومنٹری، بہت طویل ہے اس پوری ڈاکومنٹری پہ. میں نے اس میں بھی یہ کہا کہ 6 جہاز کہہ کے انہوں نے کہا آپ 5 میڈیا کو بتا دیں. اچھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی آپ نے 6 کہا ہے، اب 5 کر رہے ہیں، تو ایک کم کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ امیجن کریں ہماری ایئر فورس کا گریس. میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ کتنے کریڈیبل رہنا چاہتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ سر ہم نے 6 جہاز ایکچوئل تباہ کیے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، ویڈیو جہازوں کی ریکارڈنگ ہے، ریڈار پکچر ہے، ہم نے سب کچھ ویریفائی کر لیا ہے. لیکن ایک چیز کی وجہ سے ہم 5 کریں گے اس کو. تو میں نے کہا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں انڈیا سے ریکیج کنفرم نہیں ہو رہا کہ ملبہ گرا کہاں پہ اس ایک جہاز کا. وی ور سو کیئرفل. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے کہ جب تک ہمیں ملبہ کنفرم نہیں ہوگا ہم 6ٹا جہاز کلیم نہیں کریں گے. تو میں اسی وقت پہ میڈیا پہ بتایا بھی، اور ساتھ یہ بتایا اپنی طرف سے. میں نے کہا جی ایکچوئل 6 ہیں، 5 کی اجازت ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ 6ٹا. کیونکہ بینگ اے پائلٹ مجھے آئیڈیا تھا کہ اگر پائلٹس کے پاس ریکارڈ ہے، ویڈیو فوٹیج ان کے پاس آ گئی ہے، ریکارڈنگ جہاز کے کاکپٹ کی آ گئی ہے، اور ریڈار سگنیچر بتا رہے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی 6 ہوں گے. تو کنفرم تو ہے لیکن بس پھر بھی صحیح ہے. اور اس کے بعد سر کیا سیناریو بنا تھا؟ یہ ہم نے 6 جہاز گرا دیے، تو پھر بھارت سے کیا خبریں آ رہی تھیں؟ کیونکہ پھر سیز فائر کے لیے گیا بھارت یو ایس کے پاس. جی وہ 10 تاریخ کو ہوا. یہ تھا کہ جب 7 کی ارلی مارننگ 12:30، 6 اور 7 کی درمیانی رات 12:30 بجے جب یہ لڑائی ہوئی ہے، تقریباً 125 جہاز ہوا میں تھے. دیکھیے بی بی سی اور سی این این نے کہا کیونکہ 85 جہاز انڈیا کے تھے، 42 جہاز ہمارے 5 منٹ میں ایئربورن ہوئے. اور یہ سارا تماشا 1 گھنٹہ آسمان نے دیکھا، جس کے اندر ان کے 7 جہاز پلس ڈرون واپس نہیں گیا، وہ ہمیں بعد میں ایڈ کیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد انڈین ایئر فورس گراؤنڈ کر دی گئی. 7th کو 8th اور 9th انڈین ایئر فورس کمپلیٹلی گراؤنڈڈ تھی.
ये क्यों सर, ग्राउंड क्यों किया उनको? क्योंकि उनको कंफर्म हो गया कि हमारे जहाज यानी उनके गिरे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये क्या नुकसान हुआ है उनको पहले एनालाइज करना चाहिए। तो ये वो टाइम है, आपको याद होगा, जब उन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर ड्रोन फेंकने शुरू किए तो उनकी एयरफोर्स कंप्लीट ग्राउंडेड। बिल्कुल 10 तारीख की सुबह को, सिर्फ 9 की रात को फिर उन्होंने ये किया कि हमारे कुछ एयरबेसेस पर हमला किया, और एयरबेसेस पर जब हमला हुआ तो हमने अब रिटेलिएशन का सोचा, और सुबह 4 बजे 10 तारीख की सुबह को तब हमारे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स रवाना किए गए। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, क्योंकि आज हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो जब मैंने जहाज़ों की कॉम्पोजिशन, उनके वेपन्स को निकाला, कैलकुलेट किया, फिर मैंने पाक फ़िज़ाइया से वेरीफाई किया और मुझे कहा गया कि ये डाटा कंफर्म है, तो मैं आज फिर रिफ्रेश करता हूं कि वो जो 4.5 घंटों में हमने उनके 34 मुख्तलिफ जगहों पर हमला किया था, 16 एयर बेसिस पर हमला किया था, और इतनी टनेज फेंकी थी उस 4.5 घंटे के अंदर कि 1965 की 17 दिनों की जंग से ज्यादा टनेज 4.5 घंटे। ओहो, क्या बात। और सर मुझे बताइए, जो सक्सेस हमें मिली और हमने जहाज गिराया, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या पर्सन हु इज कॉलिंग द शॉट, वो कितना अहम किरदार है इस चीज का? और अगर ये बर वक्त ना होता तो भारत भी ये विक्ट्री खुदा न खास्ता मिल सकती थी उसको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस वक्त भी, उस रात को भी पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। ना सिर्फ उस वक्त मौजूद थे, वो ऑलमोस्ट 20 दिन घर नहीं गए थे। ये भी मुझे उनके जो कोलीग्स थे उन्होंने कंफर्म किया, वो खुद तो नहीं बताते थे। और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताते चलूँ कि मैं बाद में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से मिला, तो मैंने उनसे ऐसे ही तंजन कहा, क्योंकि मैं उनसे जानता था बहुत सालों से, तो मैंने कहा सुना आप घर ही नहीं गए, तो आप तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। मैंने कहा आप घर नहीं गए, तो ये तो बड़ा ऑब्वियसली कैसे हम मैनेज करते थे? तो उन्होंने कहा कि सर अगर मैं घर चला भी जाता तो आप बताइए नींद कैसे आ सकती है, क्योंकि मेरे पे मुल्क की जिम्मेदारी थी। एक सॉवरेनिटी मुल्क की ब्रीच किसी वक्त भी हो सकती थी। इनिशिएटिव इंडिया के पास था, तो जाहिर है इंडिया ने बता के नहीं आना था। तो हर वक्त मेरे जहन में यही था कि अगर इस वक्त हमला हो गया तो क्या करेंगे, अगर उस वक्त हमला हो गया तो जाहिर है इंडिया ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, सरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्स्ट टाइम था 12:30 बजे रात को। उन्होंने समझा होगा कि पाक फ़िज़ाइया शायद रिलैक्स होगी इस वक्त और रिस्पॉन्स नहीं करेगी। और मैं सब्सटेंशिएट एक और बात भी करता चलूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, अभी शंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू किसी ने किया 1 साल बाद, उनसे पूछा कि आपने क्या, आपको लगा और क्या सीखा आपने, या क्या आपको सरप्राइज मिला? तो वो उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा नहीं था कि इंडियन हमले के जवाब में पाकिस्तान इस तरह जवाब देगा हमें। ये उनके लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि हम एक न्यू नॉर्मल बनने नहीं देना चाहते थे। देखिए, हिंदुस्तान था कि वो 6 तारीख की रात को जब उसने किया, पहले तो वो जवाब मिला, फिर 9 तारीख को जो उसने बमबारी की मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा था, और हम ये चाहते थे कि भावलपुर, मुरीद के और जिन जगहों पे हमले किए, अगर आप रिस्पांस ना करते, जो जोएब आप कह रहे हैं, जी तो इंडिया ने कहना था कि जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन हम ही हैं, हम ही डिसाइड करेंगे पाकिस्तान में कौन दहशतगर्द है, कब मारना है, किस तरीके से मारना है। तो हमने वो रिस्पॉन्ड इसलिए किया था, टेलिंग देम कि आप इस तरह नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उससे ज्यादा कीमत उठाएंगे। बिल्कुल। और सर इसके अलावा इंडिया ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास इतने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है, क्योंकि हमने ना कभी बहुत ज़्यादा शोएं नहीं मारी, हमने कभी ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं की। हमारा एक बड़ा माशाल्लाह एक लो की करके हमेशा चली हमारी फ़ौज की, जी क्यों शो ऑफ करें, ये वो बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने लोगों को बताते थे कि भाई ताकि उस पर अरबों डॉलर स्पेंड कर सकें डिफेंस पे। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो हमने इस्तेमाल की, जिससे बड़ी हेल्प हुई, और उनका कहते हैं कि उनके तो समझ ही नहीं आया, क्राफ्ट को ब्लाइंड ही हो गए वो तो एकदम। सर वो ज़रा उसको भी बताइएगा। देखिए, साइबर कमांड पाक फ़िज़ाइया ने पिछले 3-1 साल में स्टैब्लिश की थी, क्योंकि जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं, जब इन्होंने कमांड संभाली तो इन्होंने 2 मेजर काम किए थे। एक तो J-10C जहाज इंडक्ट किया था, जो राफेल के मुकाबले जिसने जहाज शूट किए, एक तो वो था। लेकिन उनको ये भी रियलाइज किया उन्होंने टाइम पे कि आने वाली जंगें स्टील वर्सेस स्टील, जेट वर्सेस जेट, और सबमरीन वर्सेस सबमरीन या टैंकों से नहीं लड़ी जाएंगी। ये बिहाइंड द वॉरफेयर थिएटर बहुत सारी ऐसे एलिमेंट होंगे जो डायरेक्टली जंग पर असरअंदाज होंगे, और वो उससे अंदर आजकल EW और वॉरफेयर बहुत ज्यादा। तो ये साइबर कमांड इस्टेब्लिश की गई थी। फिर जब ये जंग शुरू हुई है तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हमला किया था। इंडियन के तमाम जो नेटवर्क्स थे, तकरीबन लाखों वेबसाइट्स हैक कर ली गई थी, टॉप सीक्रेट डाटा उठा लिया गया, उनकी वेबसाइट डिलीट कर दी गई। ट्रेनों का सिस्टम, यहाँ बैठ के नौजवान वॉरियर्स ने, यंग बच्चों ने जो सॉफ्टवेयर अपने बनाए हुए थे, उन्होंने ट्रेनों का नेटवर्क जैम कर दिया। नॉर्दर्न इंडिया के 70% एरिया में बिजली चली गई थी। आप विजुलाइज करें जरा, ग्रिड स्टेशन को लॉकडाउन कर दिया था।
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, क्योंकि हम अपनी एथिक्स और वैल्यूज को हाथ से नहीं जाने देते। फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जब हमें पता लगा कि हॉस्पिटल्स में भी बिजली चली गई है, तो फिर वो हमला रोक दिया गया और उनको सारी सर्विसेज रिस्टोर की गई थी। ये बात है जिसकी हम बात करेंगे, जिसको आप EW कह रहे हैं। और सर बिल्कुल एक और चीज़, ये जो नाम बुनियादुल मरसूस आया, ये नाम और फिर वो आर्मी चीफ का कुरान की आयत पढ़ना और बताना कि क्या हमारा जज्बा है और मुसलमान की क्या, इसने भी एक अलग ही जोश और वलवला दिया कौम को भी और फौजी वो जवानों जो को मिसाइल कैरियर था उस पे शोहदा के नाम लिखे गए थे, जो पहला मिसाइल मारा गया था भारत में, जी बच्चों बिल्कुल के आप नाम। वो तो सर इमेज मेरे ऐसे इनग्रेव हो गया है ना। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, बुनियादी तौर में अक्सर उस वक्त भी कहता था और पूरा साल से यही कह रहा हूँ, कल परसों से जब से ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं मैं यही अर्ज करता आया हूँ। देखिए, हम जो फौज मुसल्लह फौज किसी भी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, देखिए हम तमाम एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जंग का होता है आपकी कॉज। आपकी कॉज जस्टिफाइड है क्या? जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है। जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस आर्म फोर्सेस की जस्टिफाइड होती है। हमारी कॉज जस्टिफाइड थी। हमारी इंस्पिरेशन ये नहीं थी कि हमने किसी कब्जा करना है, किसी मुल्क पर हेजमोनी कायम करनी है, हमने कोई लीवरेज लेना है, ग्लोबल डोमिनेंस करनी है, हमारा कुछ नहीं था। हम पर एक दुश्मन हमलावर हुआ रात को 12:30 बजे 85 जहाज लेके। हमने रिस्पॉन्ड बैक करना था, क्योंकि हमें ऑब्वियसली अपना डिफेंड करना है, हमें अपनी सॉवरेनिटी अजीज है और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचाना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किया गया। और जैसे मैंने अर्ज किया, जो आप भी नादिया कह रही थी कि हमें हमारे पे ऑब्लिगेशन है कि हम डिफेंड करना चाहते हैं। जो बुनियादुल मरसूस नाम भी यही था कि हम दीवार हैं एक बुनियाद पर, जिसके अंदर ऑफेंस नहीं है, जिसके अंदर एक सेल्फ डिफेंस है। लेकिन फिर सीसा पिलाई हुई सॉलिड दीवार है, तो फिर दुश्मन ने देख लिया कि कितनी स्ट्रांग दीवार थी। इसको सर अब ये तो हमने बात इसमें ही कर ली, US और ईरान के मामले में बात ही नहीं कर पाए हम, लेकिन ये कि वन लाइनर या मुख्तसरन अगर आप बताएं कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है, बता रहा है कि अगले 48 घंटे अहम हैं, आज कोई जवाब आ जाएगा ईरान की तरफ से, तो मुआहिदा होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं? मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूँ जी, होने जा रहा है। सिर्फ नोक पलक की बात है, टाइमिंग की बात है, टर्म्स की बात है, और दोनों मुल्कों ने ये सोचना है कि कौन ज्यादा जीता कौन वो जाता है। दोनों मुल्कों में बहुत एग्जॉशन हो चुकी है, वॉर फटीग हो चुकी है, वेपन्स एक्सपैंड हो चुके हैं। अमेरिका के टोमाहॉक, क्रूज मिसाइल, पैट्रियट, PGMs जितने मिसाइल होते हैं, प्रिसीजन गाइडेड मिलिशंस, ये तकरीबन, मैं अलग-अलग शाप का टाइम नहीं होगा, तकरीबन 45 to 50% एक्सपैंड हो चुके हैं, यानी कंज्यूम हो चुके हैं। ईरान के भी तकरीबन 55%, 60% कंज्यूम हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका का ज्यादा कंसर्न इसलिए है कि अमेरिका ने सिर्फ ईरान से जंग नहीं लड़नी, ईरान ने सिर्फ अमेरिका इजराइल से लड़नी है। अमेरिका ने इजराइल की शरारतों को केटर करना है, यूक्रेन की जंग उसने लड़नी है, ताइवान के खिलाफ दहशत करनी है, या क्यूबा भी देखना है, खौफ रखना है, हर मुल्क को उसने खौफ। तो आपके पास अगर 50% मिशन खत्म हो गया है, तो आपकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, आप खुद एक्सपोज हो गए हैं, आपकी डेटरेंस का खौफ कम हो जाता है। तो आई थिंक अमेरिका की ज्यादा जरूरत है इस वक्त, ईरान की भी है। देखिए, अक्सर मैं कहता हूं कि सिर्फ वेपन्स बर्न आउट नहीं होते, इंसान भी बर्न आउट होते हैं। जी बिल्कुल। अभी जेरार्ड फोर्ड, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर वापस बुलाया गया है अमेरिका, वापस 309 दिन के बाद, जिसका मतलब है 10 महीने। अगर आप विजुलाइज करें, पानी के ऊपर 4.5 एकड़ की एक जमीन है जो फ्लोट कर रही है, जिसके ऊपर 4,500-5 हजार लोग हैं, जिनका दुनिया से राब्ता कोई नहीं है, मिलना जुलना है कोई नहीं, और 10 महीने आप अपनी फैमिली से दूर हैं, खुशियों गमियों से दूर हैं। ये सारा विजुलाइज करें, ह्यूमन एलिमेंट भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और यानी ये एग्जॉस्ट आ रहा है, इसकी वजह से मुआहिदे की तरफ हम बहुत शुक्रिया